नमस्कार सुराई सुखतप शरीर निराबाद सुखसंयम यात्रा निर्वहोजी स्वामी शाताजी बात पाणी लाभेश्वरी इच्छामी कमा समोर वंदियम जावणी जय दिसती आहे मथेण वंदामी विचारण संधी सबन ओबुड्यो में वेंदा राम काम्यो इच्छा नामी रायो जम किंची अपत्यम पर्वत्यम बत्ते पाणी विने व्यवचा आलावे सल्ला व्यवचासने समासने अदा भाषा उरी भाषा आहे जम किंची मज विने परिणाम सोमबा भैरवा तुबे जाम न जावे तस्मै इच्छामी तुला इच्छामी कमा समोर वंदियम जावणी जय दिसती आहे मथेण वंदामी सुक्षाधामा गुरुदेव इच्छामी कमा समोर वंदियम जावणी जय दिसती आहे मथेण वंदामी इच्छागण संधी सुवर्ण वायना संधी साऊ इच्छामी कमा समोर वंदियम जावणी जय दिसती आहे मथेण वंदामी इच्छागण संधी सुवर्ण वायना नेशो इच्छामी कमा समोर वंदियम जावणी जय दिसती आहे मथेण वंदामी पिचकारी मन प्रसगरी वायना प्रसाद करशो जी नमो नियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबसावणं एसो पंचनमुखारो दमभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंबडमम वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे पार्वते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवर्णम भवो तित्तराणो अपश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिया पौमा वै पमोनिसेवियपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगनाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। And the Fortis family, I can't even tell you all what a special day this is, what a special occasion this is. The entire Fortis family feels humbled, feels blessed, and feels so special that we have the honor of having with us and inviting to the hospital His Holiness Padma Bhushan Shri Saraswati Nandan Param Pujya Jainacharya Shri Vidya Ratna Sundeshri Maharaj Sahib. Thank you so much for being able to come here. In the last 2 decades, this hospital and the entire Fortis family and every member of the Fortis family has been trying to fulfill its duties as guardians of health, to look after the health needs of this community around us. The last 1.5 years of the dreadful pandemic has seen all of us struggling with various situations, but God gave us the courage, God gave us the strength, and we were able to work in this community. Every single member of this hospital was able to work in the community to heal and touch as many people as possible. It is on that occasion, today when we have His Holiness with us, it just makes us feel that much more special, more blessed, that we have with us somebody. People seek out to seek His blessings. People travel far to seek His blessings. His whole life and teachings and his books, the various books he's written, his entire life is devoted to teaching people the right way to live, emancipation, teaching happiness. What greater blessing can we have than to have him with us? Once again, I thank everybody for being here. Thank you, Guruji, for being here. And over. परम पूज्य आचार्य गुरु भगवंतो અને આમંત્રિત મહેમાનો, આજે ગુરુ ભગવંતોના
પગલા ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં થયા અને અમે સર્વ ઘણા જ ભાવવિભોર અને ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા છે. એના માટે હું બધા ગુરુ ભગવંતોનો ઘણો ઘણો આભાર માનું છું. સંસારમાં રહીને પણ જીવન કેવી રીતે સાર્થક કરી શકાય એ માર્ગ આપણને ગુરુ ભગવંતો જ સમજી શકે. સમયની મર્યાદા છે અને ઘણું બધું ગુરુ ભગવંતોને સાંભળવાની આપણી ઈચ્છા છે. બેઠેલા શ્રાવકો ઘણા જ આતુરતાથી સાહેબજીના વ્યાખ્યાનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હું સાહેબજીને વિનંતી કરું છું કે આપના ઉપદેશથી અમને આશીર્વાદ આપવાની કૃપા કરશો. ત્યાં સુધી ટાઈમ લિમિટમાં હા, ટાઈમ. એની એમ નહીં પૂછ્યું ક્યાં સુધી 35, 40, 10:45 સુધી. 10:45 स्वामी राम तीर्थ जिंदगी में पहली बार जापान गए बरसों पहले की बात, जिसके घर पे ठहरे थे. 4 मंजिल का मकान लकड़ी का मकान था. 4थी मंजिल पे ठहरे थे और आकस्मिक आग लग गई. रात का समय पता चल गया. मकान मालिक के साथ स्वामी राम तीर्थ नीचे उतर गए. आग जम के आगे बढ़ी और प्रीमाइसिस में खड़े रह कर के स्वामी राम तीर्थ ने सब कुछ देखा. फायर ब्रिगेड वाले आ गए. 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वाले ने मकान मालिक को पूछा, इस कोने में आग अभी नहीं है, आपको कुछ ऐसी चीज़ याद आती है कि आपकी बहुत अगत्य की चीज़ है, हम लेके आवे. आग लगी तब स्वस्थता कहाँ, और उसने बोला आपको ठीक लगे वो लेके आओ. और वहाँ गए. हीरा माणिक मोती की पेटी थी, लेके आए. मकान मालिक के सामने रख दी और फिर पूछा ये कोने में भी अभी आग नहीं पहुँची है, आप कुछ चाहते हो तो हम लेके आए. पहली बार भी मैंने आपको बोला था आपको जो ठीक लगे लेके आओ, और लेके आए. मैं रिपीट करना चाहूँगा, जब दोबारा गए और लेके आए, मकान मालिक शायद बेहोश हो गया. जो लेके आए थे वो देख करके 28 साल के एक लौते लड़के की लाश, डेड बॉडी वो लेके आए थे, पूरी जल चुकी थी. स्वामी राम तीर्थ ने अपनी डायरी में एक नोट डाउन किया कि मेरी आंखों के सामने 4 मंजिल की आग देखी, लाखों करोड़ रुपए का हीरा माणिक मोती सब बच गए वो भी देखा, और 28 साल के एक लौते लड़के की डेड बॉडी भी देखी. मैं इस नतीजे पे आया हूँ, यहाँ मालिक चला जाता है माल बच जाता है. मालिक चला गया माल बच गया. आई वुड लाइक टू आस्क यू, वे ऑफ हैप्पीनेस आप ये जो भी चाहते हो, फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू वुड लाइक टू बी रिच और यू वुड लाइक टू बी हैप्पी. व्हाट इज द गोल इन योर लाइफ? आपके जीवन का गोल मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, आपका रास्ता बदलना पड़ेगा. आपको जिस रास्ते पे जाते हो उस रास्ते पे बहुत कुछ नियंत्रण आपके सामने आ जाएंगे, मगर दिल से मैं आपको पूछता है, हार्टली आप तय करो. आपके सामने 2 चॉइस आ जाए, 1 चॉइस यू कैन बी हैप्पी, 1 चॉइस यू कैन बी रिच, एंड 3rd चॉइस यू कैन बी हैप्पी एंड यू कैन बी रिच ऑल्सो. आज मेरे सामने आप बैठे तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं बताऊं एक छोटी सी बात. आप मरीज का बीपी, तो क्या बोलते हैं बीपी को, ब्लड प्रेशर. आप मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करते हो, आपके प्लेजर का चेक किया आपने कभी? व्हाट अबाउट प्लेजर? मैं अकेला नहीं बोलूँगा, आप भी तो मेरे साथ बात कर सकते हैं. व्हाट अबाउट योर प्लेजर? आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद, आपकी मस्ती, इनके लिए आपकी व्यवस्था क्या? मरीज का ब्लड प्रेशर देखने का कोई विरोध नहीं है, बट व्हाट अबाउट माई प्लेजर? अब बताएंगे, मुझे आनंद आएगा. आपके जीवन का गोल, मैं साधु हूँ, प्रवचन करता हूँ, लेखन करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, 50,000 किलोमीटर से जाके आया, मगर मैंने प्लेजर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. नेवर. चाहे दुनिया भर की सफलता मिले, मैं प्लेजर के साथ मेरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ. आपको मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज आपकी मेंटालिटी क्या है? मान लिया कि दुनिया में सफलता बहुत मिलती है, मगर प्लेजर का बलिदान देना पड़ता है.
आप प्लेजर को संभालेंगे या सक्सेसनेस को संभालेंगे? સાહેબ જી રાઉન્ડ પર જઈએ અને જો મારો પેશન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થતો હોય અને પેશન્ટના મોઢા પર સ્મિત હોય, રિલેટિવ્સ ખુશી હોય તો એ મારા માટે ઘણો પ્લેઝર છે. ओके, मैं विरोध नहीं करता हूँ, ये प्लेजर पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम. छोटी सी बात बताऊं, आप मजबूरी से रिक्शा में गए और रिक्शा वाले को अपने रिक्शा में बैठ गए और 50 रुपया का मीटर आया और रिक्शा वाले ने 70 रुपया मांगा. ज़्यादा 20 रुपया मांगने के बाद भी आपका प्लेजर बना रहेगा क्या? 20 रुपया ज़्यादा मांगा है ना, और तो कुछ नहीं मांगा उसने. और वो टाइम आपका प्लेजर, आपकी मस्ती, आपकी प्रसन्नता, आपकी स्वस्थता 100% मान लिया. सामने वाला बोलेगा यार 20 रुपया ज़्यादा मांग लिया, भले मांग लिया, मेरी मस्ती को डिस्टर्ब करने की ताकत 20 रुपया में नहीं हो सकती है. एक छोटा सा प्रश्न फिर से, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर प्लेजर? यहाँ फोर्टिज में जो भी आता है उसको कोई पे करना पड़ता है. ओके, व्यवस्था है, हॉस्पिटल की हर जगह की व्यवस्था है. बस में जाते हो तो पे करना पड़ता है, रिक्शा में जाते हो तो पे करना पड़ता है. मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर आप मुझे बताओ प्लेजर की तुम क्या पे करना चाहते हो? व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर प्लेजर? જો મહારાજ આપણે કૌટુંબિક ઘરની સુખ શાંતિ, ઘરનું સ્વાસ્થ્ય, મગજની શાંતિ અને એક કાર્યમાં આપણને એક જાતનો સંતોષ મળે, આઈ થિંક એ બહુ મહત્વનું છે. आपने जो बोला वो तो बराबर है, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपकी जीवन की व्यवस्था क्या है? आप 24 घंटे फील कर सकते हो प्लेजर? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 20 रुपया ज़्यादा मांग लिया, मैं सीधा आपको कोटेशन दे दिया कि आप ये मस्ती अनुभव कर सकते हो. जानबूझ करके उसने आपको आपसे चीटिंग कर दी और आपने 20 रुपया दिया. कोई किसी ने बोला यार तू बेवकूफ़ बन गया, तुम बोल सकते हो 20 रुपया के लिए बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार था, मेरी शांति मेरी मस्ती में डिस्टर्ब करने के लिए. बस इतना ही तो मैं पूछना चाहता हूँ. माल बच गया और मालिक चला गया, प्लेजर चला गया और सफलता मिल गई, क्या करना है आपको? मैं एक अलग बात बताऊं, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आपकी बात नहीं है मगर बात तो करूंगा. और ऑपरेशन करने के बाद, हाँ ये एक अलग बात है, एग्जांपल देता हूँ. देखा, ऑपरेशन समाप्त होने के बाद मरीज के स्वजन बाहर बैठे थे, वो जानना चाहते कि ऑपरेशन कैसा हुआ, बराबर है. और डॉक्टर निकले बाहर निकलने के बाद मरीज के स्वजन ने देखा कि डॉक्टर के चेहरे पे मुस्कान भी है और कहीं सैडनेस भी है. और एक स्वजन ने हिम्मत करके डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन थिएटर से निकले, आपने ऑपरेशन तो कर लिया, व्हाट इज द पोजीशन? और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट फेल. सच बोलो, वो ऑपरेशन का क्या करना है जहाँ मरीज खत्म हो चुका? वो सफलता का क्या करना है जहाँ तुम्हारी प्लेजर खत्म हो गई? मैं विरोध नहीं करता हूं. व्हाट अबाउट माई प्लेजर? मेरी मस्ती का क्या? 54 साल के रिक्शा जीवन में आई एम रियली हैप्पी. चाहे सफलता मिली, निष्फलता मिली, 50 डिग्री की गर्मी थी, मैं भी हॉस्पिटल में भी ब्रिज कैंडी जाके आया, कोरोना के हिसाब से बाईपास का ऑपरेशन करा अभी जुपिटर में, हर मगर मेरी मस्ती को सब, चाहे कुछ भी हो, मेरी प्लेजर सलामत थी. आपके जीवन का गोल क्या? रिचनेस, सक्सेसनेस या प्लेजर? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम अमीर मत बनो, वो तुम्हारी व्यवस्था है. सफल नहीं बनो, वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर हम किसको लेकर के सफलता चाहते हैं उनकी थोड़ी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ. वे ऑफ हैप्पीनेस, फर्स्ट योर टारगेट मस्ट बी प्लेजर. We can change principal policy matter, but we can't change principal matter. Repeat, we can change policy matter, but we can't change principal matter. 2 plus 2 is equal to 4, 6 minus 2 equal to 4, 8 divided 2 is equal to 4. आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइडेड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जवाब 4 का चाहिए. आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, दुनिया का आपका अवार्ड मिले, मगर आपका प्रिंसिपल वो होना चाहिए, मेरे प्लेजर के साथ मैं कोई समाधान नहीं कर. बताओ एक बात, सुसाइड करने वाला कौन है? निष्फल आदमी कि दुखी आदमी? अपने प्लेजर को जो ख़त्म कर देता है उनको ही तो सुसाइड करने का मन होता है.
सफल आदमी भी तो सुसाइड करता है, रिच आदमी भी सुसाइड करता है। मैं आपको बताऊं, अमीर आदमी सुसाइड कर सकता है, सफल आदमी सुसाइड कर सकता है, मगर आनंदित आदमी कभी सुसाइड नहीं करेगा, नेवर। लाखों करोड़ों रुपया होने के बावजूद सुसाइड करने की जरूरत क्या थी? ही वॉज नॉट हैप्पी। मेरा आपसे पहला कहना है, लिव एग्जाम्पल। मैं 5 स्टेप की बात आपके सामने जो भी मुझे समय मिला है उसमें आपके सामने करूंगा। लिव एग्जाम्पल। आप जहां भी हो, जिस सोसाइटी में हो, जिस एरिया में हो, आपका एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत लोग तैयार हो। मेरा आदर्श हो, डॉक्टर हो तो ऐसा, एडवोकेट हो तो ऐसा, बिजनेसमैन हो तो ऐसा, साधु हो तो ऐसा, लड़का हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पत्नी हो तो ऐसी। नाउ आई वुड लाइक यू, आप चाहते हो कि हम गुरुदेव एग्जाम्पल 5 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए, वो आपका प्रश्न है। अहमदाबाद के डॉक्टर जिनका नाम प्रकाश कुर्मी, मैं आज इनका एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। मैंने उनको देखा नहीं, 4 दिन के पहले पेपर में उनका एग्जाम्पल आया तो मैं आज आपको देना चाहता हूँ। उनके पिताजी शांत हुए तो प्रकाश कुर्मी डॉक्टर, पिताजी ने उनको एक राय दी कि बेटा डॉक्टर तो बन चुका है, जितना भी ग्रोथ तेरा हो मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मगर मेरी एक एडवाइस है तुझे कि रिक्वायरमेंट ख़त्म होने के बाद, समझ गए, नॉट डिज़ायर बट रिक्वायरमेंट, तेरी रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाए और तेरा खुद का कॉन्शियस बोले एवरीथिंग इज गुड गोइंग, देन मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ, 10% मनी एंड 10% टाइम यू हैव टू डू चैरिटी। एक बाप ने अपने डॉक्टर बेटे को ये बता दिया, 10% मनी एंड 10% टाइम चैरिटी करते रहना बेटा। 4 दिन के पहले वो डॉक्टर का समाचार मिला, सैटरडे और संडे डॉक्टर को यदि आप मिलना चाहते, वो कभी मिलते नहीं है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही मिलते हैं। पिताजी ने 10% मनी और 10% टाइम की बात बताई और अपनी एक व्यवस्था बनाई कि पिताजी को मैंने वादा दिया है कि सब कुछ टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद मैं इतना कर सकता हूं, 10% मनी एंड 10% टाइम। आपको मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर उसको लगा ये जवान लश्कर देश की सुरक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं, उनकी मेडिकल की व्यवस्था कौन करता होगा? वो गए, मिलिट्री का व्यवस्था की, जिनको मिलना था सबको मिल लिया और मैं उनके सब मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था करना चाहता हूँ, इफ़ यू कैन गिव परमिशन टू मी। और वो डॉक्टर को परमिशन मिल गई और हर सैटरडे और संडे वो डॉक्टर वहाँ जा कर के 6 साल से इनकी व्यवस्था है और सब होकर के 10,500 जवान का स्वास्थ्य उसने अच्छा कर दिया। लिव एग्जाम्पल। मेरे जैसो भी एक प्रकाश डॉक्टर मैंने देखा भी नहीं, मगर इनका एग्जाम्पल देने की मुझे मजा आ गई। आपको लगता है कि आप एग्जाम्पल बन चुके हैं परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। दंभ मत करना, माया नहीं, गलत तरीके से हम एग्जाम्पल, मगर आपको बोलना भी ना पड़े, समाज आपके लिए बोले, दुनिया आपके लिए। मैं प्रेम से पूछना चाहता हूँ, प्रेम से, आपको क्या लगता है जिंदगी का आपका गोल है कि गुरुदेव एक एग्जाम्पल ऐसा बन के रहूँगा, मुझे लेकर के कई लोगों को इसी रास्ते पे चलने का मन हो, डॉक्टर हो तो ऐसा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लिव एग्जाम्पल। शायद मैं नहीं कहता हूँ कि आप एग्जाम्पल नहीं होंगे, मगर आपको लगता है कि उसी रास्ते पे आपका जीवन चल रहा है। संजय भाई क्या लगता है? नहीं, मुझे कोई पहली बार आपने मुझे बुलाया, हॉस्पिटल में बुलाना वो भी बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन का गोल नंबर 1 प्लेजर और एग्जाम्पल, मैं दोनों साथ में चलाऊंगा। कई डॉक्टरों मैंने देखे जिनका आज नाम आपके सामने नहीं बताना चाहता हूं, मगर दिल खुश हो जाए।
अपनी हॉस्पिटल में, अपनी डिस्पेंसरी में आने वाले मरीज के पास दवाई नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, दवाई तो दे दी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया वो भी ठीक है, मगर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद रिक्शा में बैठने का उसके बाद पैसा न था, डॉक्टर खुद की गाड़ी में उनके घर पे लेके गए। विथ नेम आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर आप मेरे सामने जो बैठे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का एक टारगेट रहेगा, आई विल बी एग्जाम्पल। दुनिया को मेरा इस जीवन की समाप्ति के पहले मैं एग्जाम्पल बन के जाऊंगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? चलो आगे। नंबर 1, प्लेजर मेरी अनुभूति होनी चाहिए और एग्जाम्पल मेरा जीवन होना चाहिए। सेकंड नंबर, आप हेमोग्लोबिन की तो चेक करते हो, आपकी हैबिट को चेक करते हो क्या? नहीं, मरीज का हेमोग्लोबिन कैसा है? नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी हैबिट क्या है? आपकी हैबिट मैं फिर से बताना चाहूँगा आज, योर बॉडी इज नॉट ओनली योर प्रॉपर्टी। दुनिया की प्रॉपर्टी है, समाज की प्रॉपर्टी है, फैमिली की प्रॉपर्टी है। मेरी बॉडी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बॉडी में समझता हूँ है मेरी, मगर प्रॉपर्टी कितने लोगों की है। आपकी बॉडी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी बॉडी पूरे समाज की, फैमिली की, राष्ट्र की, में भी पॉसिबल दुनिया की प्रॉपर्टी हो सकती है। आपकी प्रॉपर्टी को, दुनिया की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का आपको राइट नहीं है। आप दावा के साथ बोल सकते हो, गुरुदेव ऐसी कोई हैबिट मेरे जीवन में नहीं है जो हैबिट विश्व की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करे। कभी कभी मुझे मालूम नहीं है, मगर कई डॉक्टरों के बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली में मेरा प्रवचन था। मैंने बड़ी पीड़ा से एक प्रश्न पूछा था कि सिगरेट के पैकेट पर जो वो आता है ना, कुछ क्या लिखा आता है, चेतावनी, हाँ, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तब मैंने वो डॉक्टरों के बीच में एक प्रश्न पूछा कि आप तो ये पढ़ते हो, भगवान महावीर के वचन की आप कर श्रद्धा न हो, परलोक, पुण्य, पाप, गुरुदेव वी डोंट बिलीव इन दैट। साइंस में तुम बिलीव करते तो क्या? हाँ। मैं बोला पैकेट तुमने पढ़ा तो क्या? हाँ। तो मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे सामने जो भी डॉक्टर लोग बैठे उसमें से एक भी डॉक्टर सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है, वो 100% बोलते हैं, 100% की बात। ओके, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंटेलिजेंट लोग ये पढ़ने के बाद भी पीते हैं ना, मैं पूछना इतना चाहता हूँ, वाई? ये हैबिट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपकी पत्नी को, बेटे को, माँ को, समाज को, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सके। मैं अकेला मेरी गलत हैबिट से मर सकता हूं, मगर मेरे परिवार को मैं कैसे मार सकता हूं? 28 साल के लड़के को, कितने लड़के को मैंने कैंसर में मरते हुए देखा है। व्हाई दिस? आप इतना तो बोल सकते हो गुरुदेव हैबिट है, मगर ऐसी हैबिट नहीं कि मेरे पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दे। वाइन, ये सिगरेट, तुम सब कुछ जानते हो, मरीज को भी तुम ये बोलते तो हो ना, ये मत पीना यार। हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? परलोक पर, पुण्य पर, पाप पर, धर्म पर में भी पॉसिबल आप चैलेंज कर सकते हो, गुरुदेव किसने देखा। चलो मैं इनकी अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। कई लोगों की मानसिकता होती है ना, एक आदमी की मानसिकता थी, जो भी उनको मिले ना उसको ऐसा प्रश्न पूछे उनको मौन कर दे। उनको नशा था, मेरी बुद्धि इतनी पावरफुल है, कोई मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। एक 22 साल का लड़का हाथ में दीपक लेकर के जा दिया, दीपक जला हुआ, और उसको लगा इनको भी शांत कर दूंगा, खड़ा रह गया। शाम का टाइम था और दीपक की जोत थी ना, पहले तो उसने सामने पूछा ये दिए की जोत आई कहाँ से। अब उसने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि दीपक की जोत कहाँ से आई। वो शांत हो गया, जवाब नहीं आता। उसने बोला मैं आपको जवाब देता हूँ, इनके पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। उसने फूंक मार दी और दीपक की जोत को बुझा दी, और फिर उसने पूछा दीपक की जोत गई कहाँ। उसने बोला कि तो मालूम था कि भाई वहाँ से आई थी।
आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे इस सभा में सिर्फ इतना प्रॉमिस दे सकते हो, मेरी कोई भी हैबिट मेरे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को डिस्टर्ब करे, ऐसी हैबिट का शिकार मैं जिंदगी में कभी न हूं और न कभी बनूंगा। और तो मैं कुछ नहीं मांगता हूं। मैंने खुद ने देखा, तो आपने तो कितने लोगों को देखा। मैं तो साधुओं के करीबन 10-15 लड़के को मैंने कैंसर में मरते हुए देखा है, मगर तुमने तो टाटा हॉस्पिटल बड़ी भरी पड़ी है इनको लेकर के, तो आपको मालूम होगा ये गलत हैबिट कितनी डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 1, लिव एग्जाम्पल। सेकंड नंबर, लिव एक्सपीरियंस। आपने कितने लोगों को आपकी आंखों के सामने ये देखा होगा, आपका अनुभव नहीं, किसी और का अनुभव। आपने सिगरेट कब छोड़ दी? गुरुदेव, मेरी आंखों के सामने मैंने 15 लोगों को कैंसर में खत्म हुए देखा, तब से गुरुदेव इस चीज को मैंने छोड़ दी। 150 किलोमीटर की गति से तुम गाड़ी भगाते हो, तुमने ये कंट्रोल कब कर लिया? नॉट मोर देन 100। गुरुदेव, 150 किलोमीटर की गति पे जाने वाले कितने लड़के के, कितने माँ बाप को एक्सीडेंट में खत्म हुए देखा, तब से तय के लिए आए ये गति से गाड़ी भगाना नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप एक्सपीरियंस को लेकर के आपके जीवन में बदलाव लाए कुछ? मुझे मालूम नहीं, फिर भी संजय मैं पूछ लूं, ज्यादा से ज्यादा हाईवे पे आपकी गाड़ी जाती है, कौन सी गति पे जाती होगी? हाईवे बिल्कुल खुला भरा पड़ा है, टॉप गियर में आपकी गाड़ी जा सकती है। आपकी गाड़ी की गति एवरेज क्या हो सकती है? 120, 100। सच बोलो, थोड़ी कम करो तो दिक्कत क्या है? मैं पुणे में चातुर्मास था, लोगों की अक्ल कहाँ जाती है समझ में नहीं आता है। पुणे में मैं चातुर्मास था, कई लड़के बम्बई से आते थे और क्या करते थे मालूम है गुरुदेव? 2-2.5 घंटे में बम्बई से पुणे। પણ મોટામાં મોટી મુશ્કેલી શું મને પાછા કેવા આવે, સાહેબ 2 કલાકમાં મુંબઈથી પુણે। મેં પછી શું કર્યું તો કે 2 કલાક સૂઈ ગયો। હું ગાડી ધીમે ચલાવી थी ना, મને ना करता। 2.5 घंटे गाड़ी भगाने के बाद तू यदि सो जाता है तो गाड़ी धीरे चलाने में दिक्कत क्या आती? नहीं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, कभी ना कभी आप गाड़ी भगाते हो ना, एक काम करो, स्पीडोमीटर पे 100 की गति पर 100 का फिगर है ना, वहाँ आपकी पत्नी का, आपके बेटे का, आपका माँ का, आपके पिताजी का एक फोटो रख देना। यदि आपके पास हृदय जैसी कोई चीज होगी ना तो आप रुक जाएंगे, यार ये मेरा एक लौता बेटा, इनका फोटो, शायद मैं चले जाऊँ तो बेटा कहाँ जाएगा? कोई डर नहीं, बस तुम गाड़ी भगाते चलो और तुम विश्वास में बैठे हो दुनिया का एक्सीडेंट होगा, मुझे नहीं होगा। लिव एक्सपीरियंस। भगवान महावीर ने क्या कहा वो छोड़ो, एक संत ने तुम्हें क्या कहा छोड़ो, आंखों के सामने तुमने देखा, उससे तो कुछ समझ लो। सेकंड नंबर में आप पास योगेश भाई, क्या सबका तो नाम मैं नहीं जानता हूं इसलिए मोस्ट वांटेड है उनका नाम बोलता हूं। नहीं, आप ये सरलता से बोल सकते गुरुदेव और कुछ भगवान महावीर की बात हमने सुनी होगी मगर कुछ देखा नहीं, मगर ये तो सब हमने हमारी आंखों के सामने देखा है। हमारे वहाँ आने वाले मरीज कितनी गलत हैबिट का शिकार है वो हम सब ने हमारी आंखों के सामने देखा है, ये एक्सपीरियंस भी देखा है। गुरुदेव, तब से दुनिया का जो हो हमारा जीवन हमने कन्वर्ट कर दिया है। What about my habit? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, चेन्नई में सुराणा सुराणा जिनके हाथ के नीचे करीबन 120 एडवोकेट है, दक्षिण में बहुत बड़ा नाम है। मेरा उनसे परिचय हुआ दिल्ली से। कमाल की बात उसने बता दी, मिरेकल, लिव एग्जाम्पल। मैं आपको विथ एड्रेस देता हूँ नाम,
आपने अपनी ऑफिस के बाहर 4 बोर्ड लगा दिए, मेरे पास एक भी वाइन वाला केस लेके नहीं आएगा, करप्शन वाला केस नहीं, टॉबैको वाला केस नहीं और वायलेंट वाला कोई केस नहीं। दक्षिण में जिनका नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जिनकी मुलाकात लेने के गई थी, इतना बड़ा नाम, मगर उसने तय किया कि इसके साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नो वायलेंट, नो टोबैको, नो करप्शन और नो वाइन, नो लीकर। क्या उनकी खुमारी, क्या मस्ती गुरुदेव, पैसा तो हर जगह मिलता है, मगर एक लिव एग्जाम्पल को लेकर के मेरे लेकर के कई लोगों ने अपने जीवन की व्यवस्था बदल दी है। सेकंड नंबर का स्टेप, व्हाट अबाउट माय हैबिट, और गुरुदेव एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सुधर गया मैंने, बहुत कुछ। आपके मन की बात मैं सुनना चाहता हूं, यदि आपके पास कुछ भी हो इनके लिए। जिस लाइन पे आप जाते थे उसी लाइन को आपने डायवर्जन दे दिया तब से, जब आपने किसी मरीज को देखा ये रास्ता मे भी पॉसिबल कर, मेरे खुद के जीवन में भी ये आ सकता है। जो उपदेश से नहीं समझता वो एग्जाम्पल से समझ जाता है और एक्सपीरियंस से भी समझ जाता है। देख, तेरी आंखों के सामने दिखाना चाहता हूं। सेकंड नंबर, हेमोग्लोबिन नहीं मगर हैबिट। और थर्ड स्टेप, पल्स रेट तो तुम देखते हो, प्रोग्रेस रेट क्या, मरीज का पल्स रेट तुम देखते हो कि इतना पल्स जा रहा है, कम ज्यादा, आपका प्रोग्रेस का क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस। मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूं, आप मुझे चैलेंज करना चाहते हो चैलेंज करो, यार मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हो प्रश्न। प्रोग्रेस 3 क्षेत्र में। नंबर 1, आई वुड लाइक टू गेट गुड, दिस इज अ प्रोग्रेस। गुरुदेव डोंबिवली में रहता था, आज मुलुंड में हूँ, आज मुलुंड में हूँ, कल मैं भी पॉसिबल गुरुदेव बालकेश्वर में जा सकता हूँ। आज गुरुदेव फ्लैट में हूँ, कल बंगला का मालिक बन सकता हूँ। आज फियाट है, कल BMW की गाड़ी हो सकती है। दिस इज द प्रोग्रेस, आई वुड लाइक टू गेट गुड। सेकंड नंबर, आई वुड लाइक टू डू गुड, दिस इज प्रोग्रेस। 5% गुरुदेव चैरिटी करता था और जब सुना तब से 10, 20, 30% प्रति चैरिटी करने का शुरू कर दिया। आज तक चंद लोगों के लिए मैं ध्यान रखता था और आगे निकल गया। सेकंड नंबर, दिस इज माय गोल, आई वुड लाइक टू डू गुड। थर्ड नंबर, आई वुड लाइक टू बी गुड, not only to get good, not only to do good, but I would like to be good. मेरी बात बताऊं, एक्स फॉर एग्जाम्पल, कोरोना हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो पहले नंबर में मैं ब्रिज कैंडी में गया, दैट मीन्स टू गेट गुड। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, वहाँ अच्छी ट्रीटमेंट मुझे मिली, दवाई ली, जो कुछ भी किया, डू गुड, और मैं स्वस्थ होकर के बाहर निकला, वो बी गुड। इस सभा में बैठने वाले भाइयों बहनों माताओं सबको पूछना चाहता हूँ, आप प्रोग्रेस किसको मानेंगे, गेट गुड को, डू गुड को या बी गुड को? आपकी मानसिकता क्या है? बी गुड। और आपको बताऊं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू गुड एंड बी गुड? आपका फोटो अच्छा आ जाए वो डू गुड, आपका एक्सरे क्लियर आ जाए वो बी गुड। समझ गए? सारी दुनिया को आप आपका फोटो दिखा पाएंगे, मगर एक्सरे तो सब देख भी नहीं पाते, देखे तो समझ में नहीं आता है। आपकी बाहर की व्यवस्था दुनिया देख पाएगी, वो फोटो है ओनली टू डू गुड, मगर आप अंदर से साफ सुथरे होंगे तब भी गुड। आपका खुद का कॉन्शियस आपको बोले यार मजा है, चाहे रात को 12 बजे करप्शन करने का मौका मिले, 100% में नहीं करूंगा, यू आर बी गुड। लोगों की नजर आपके सामने है तब आप अच्छा करते हो, इट इज द डू गुड।
कोई आपको देखने वाला नहीं है, फिर भी आप कुछ गलत नहीं करते हो, इट इज टू बी गुड। તમે વેલ ઇન્ટેલિજન્ટ છો, વેલ રીચ છો, પણ તો પણ એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં, સાચું બોલો, તમે રોડ ઉપર જતા હો, એકલા હો અને અચાનક તમારી નીચે નજર નીચે જાય, સાચું બોલો, કોઈ જોનાર ન હોય અને કેટલા રૂપિયા નીચે પડ્યા હોય તો તમે ઉઠાવો નહીં? ન સમજાય તો ફરી વાર પૂછું. કોઈ ન હોય, તમને કોઈ જોતું ન હોય, તમે એકલા જો, કેટલા રૂપિયા નીચે પડ્યા હોય તો તમે ઉઠાવ્યા વિના આગળ ચાલો? કેમાં ગંભીર પ્રશ્ન પૂછે છે? बहुत गंभीर। सच बोलो, इसमें मैंने क्या पूछा? हजारों लाखों रुपया लेकर के बैठे हो आप, इतना बोलो कि इतना रुपया गुरुदेव, इतना रुपया तब तक मैं देखूंगा नहीं, इतना बोल दो। पचास भाई त्यावधी छोड़ी दिए, 100 में तो ले लिए, तो बी गुड क्या गयु પછી? અને 50 ની નહીં, 100 ની પણ તમે છોડી દો, કોઈ જોતું હોય તો. ફરી વાર કહું, તમને કોઈ જોતું નથી ત્યારે તમે જે કરો છો એ તમારી ઓરિજિનાલિટી છે. નો વન સી યુ. કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને જોતી નથી ત્યારે તમે એકલા, તમને બધું જ કરવાની છૂટ છે અને તમે જે કરો છો એ તમારી આઈડેન્ટિટી છે. सबसे ज्यादा चैलेंज टू बी गुड की है, डू गुड की कोई दाऊद इब्राहिम भी चैरिटी कर सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? करोड़ों रुपए का मालिक वो भी तो चैरिटी कर सकता है, डू गुड में तो कोई विरोध नहीं. सबसे ज्यादा चैलेंज टू बी गुड की है. प्रोग्रेस रेट, पल्स रेट की बात नहीं, व्हाट इज द माई प्रोग्रेस रेट? गुरुदेव, इतने साल के बाद, मैं 54 साल के दीक्षा के बाद मैं खुद को ऑब्जर्व करता हूँ, टू बी गुड के क्षेत्र में मैं कहाँ बैठा हूँ. आई एम ओनली मैट्रिक पास, कॉलेज में कभी देखी नहीं. और फिर भी यहां तक पहुंचा. आप पूछ सकते हो व्हाट इज द गुरुदेव, इनका राज क्या है? शायद आपकी खोपड़ी में बैठे न बैठे, मगर दिस इज माई एक्सपीरियंस, माई, नॉट योर, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस. इफ यू कैन सी इनविजिबल, यू कैन डू इम्पॉसिबल. If you can see invisible, you can do impossible. If you can only visible, you can't do impossible. और आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपकी श्रद्धा बैठ जाए तो, कोई आदमी बुलेट से मर जाता है? सच बोलो, आपको क्या लगता है आदमी बुलेट से मरता है? संजय में वो बंदूक से बुलेट निकाल दो और ऐसे हाथ से लगाओ बुलेट सामने वाले को, मरेगा क्या? नहीं ना. सच बोलो तो हम कैसे बोल सकते कि आदमी बुलेट से मरा? नेवर. बुलेट को तुमने मार दी फिर भी नहीं मरा. तो बुलेट से आदमी तब ही मरता है. बंदूक में बुलेट को लगाने के ट्रिगर जब तुम दबाते हो ना, तो इनविजिबल फोर्स ट्रिगर का बुलेट को मिलता है, विजिबल बुलेट को इनविजिबल फोर्स मिलता है, तब बुलेट अपना काम कर लेती है. आपका इंजेक्शन से कोई बचता नहीं है, मगर इंजेक्शन विजिबल है, कोई इनविजिबल फोर्स उनको मिलता है. पहले तो ये पूछूं, संजय भाई, मानस जीवे ऑक्सीजन ले त्यारे कि ऑक्सीजन ले त्यारे जीवे? તમે સમજ્યા નહીં? ફરી વાર માણસ જીવતો હોય ત્યારે ઓક્સિજન લે કે ઓક્સિજન લેતો હોય ત્યારે જીવતો હોય? શું કહ્યો? એટલે ઓક્સિજન થી જીવે કે જીવે તો ઓક્સિજન લે? હે? ઓક્સિજન લેતો હોય તો જીવે. સાચું બોલો તો મોઢાને ઓક્સિજન આપો, ડેડ બોડીને આપો ઓક્સિજન, જીવે? કેમ નથી જીવતો? શું તકલીફ કેમ પડી? તમે કહો ઓક્સિજન લીધો માટે જીવ્યો, આપો, કેમ નથી જીવતો? પણ નંબર ટોપ પર તમે શું મૂકશો, ઓક્સિજન કે જીવતો માણસ? તમને થોડી મજા આવે, ભલે 5 મિનિટ બધા લાગે. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનમાં એમ્સના ડૉક્ટર હતા બધા, ખેર ખાં બધા.
और उनके बीच में मैं मैट्रिक पास, और डॉक्टर को फिर से मुझे तुम भगवान को मानते हो, ठीक है आप बोले, मगर मैं हार्डली जवाब देना, मुझे ऐसे में जवाब देना तो कि नहीं, पुण्य पाप धर्म कर्म आत्मा नहीं, मैं तो छोड़ो, आपके साथ मैं भी हूँ, मैं भी नहीं मानता और आप भी नहीं मानते हो, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, रात को सोने के बाद कोई भी आदमी सुबह उठता है, उनको उठाने वाला कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मुझे जो प्रश्न पूछा था, आज 40 में आपको भी पूछना चाहता हूँ, रात को सोने का काम यदि आप कर सकते हो, आपको उठाने का काम कौन करता है? अस्सी साल का बुढ़ा जिंदा रह गया, इनके बाजू में सोया 8 साल का बेटा मर गया, क्या तकलीफ क्या हुई? फरी मार कहूँ, તમે રાતના સુવો ત્યારે ઇન્જેક્શન લો, ગોળી લો, કાંઈ પણ કરો, એ મે બી પોસિબલ તમારા હાથમાં હોય, પણ તમને સવારના ઉઠાડે કોણ? શું કહ્યું? यदि आप पुण्य पाप धर्म कर्म आत्मा मोक्ष किसी को नहीं मानते हो तो मैं पूछना, आपको सुबह उठाने वाला कौन? શું કીધું? સૂર્યોદય. કેટલા ઉકલી ગયા એમને? મોબાઈલ પર અલાર્મ વાગે પણ ઓલો અંદરથી ભયો ગયો, અલાર્મ કોણ આમ પડશે? હા, તમારી જેવા જવાબ ડોક્ટરે આપ્યા હતા, કોઈ કે ભાઈઓ ઉઠાડે, કોઈ કે બૈરી ઉઠાડે. હા, જો આનો લોજિકલી જવાબ આપો, તમને ઉઠાડે કોણ સવારના? हैं? माने आना पड़ा ना तुम्हें, इनविजिबल फोर्स को आपको स्वीकारना पड़ा ना, यू नो आंसर. मैंने वो पूछा था, तुम बॉडी के डॉक्टर हो, माइंड के नहीं हो, आत्मा के नहीं हो, तो बॉडी के डॉक्टर तो सीधा बताओ. 1.5 घंटे तक प्रवचन में एक डॉक्टर के पास जवाब नहीं था. वी कांट अंडरस्टैंड कि गुरुदेव उठाता कौन है हमें. मैं बोला, इतनी छोटा सा प्रश्न का तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और तुम भी तो पुण्य पाप धर्म कर्म आत्मा में उसको नहीं मानते हो. 1.5 घंटे के प्रवचन के बाद मैं प्रवचन को विराम दिया था, तब डॉक्टर ये खड़े हो गए, महाराज साहब जाने के पहले बताओ तो सही कौन उठाता है. मैं बोला, दिल्ली छोड़ू तब बताऊंगा. इतने छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं, और तुम बोलते हो वी डोंट बिलीव इन इनविजिबल. नंबर 3, पल्स रेट का विरोध नहीं है, प्रोग्रेस रेट क्या? 54 साल के दीक्षा प्रिय के बाद मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूं कि इतना साधु जीवन के बाद मेरा अभ्यंतर ग्रोथ कहाँ? नॉट ओनली टू गेट, रिपीट, ये मुझे भी ना टू गेट गुड. 54 साल से मैं साधु जीवन की क्रिया करते चला, टू डू गुड. मगर इतने दिनों के बाद मेरी आंखों के विकार कम नहीं हो रहे हैं, मेरा हृदय माफ करने में यदि आगे नहीं है. इफ आई कांट लव यू, तो मैं टू गेट गुड और डू गुड का कोई मायना नहीं रखता है. आपके 40s का कोई भी डॉक्टर का एक ही गोल है ना, हमारी हॉस्पिटल में आने वाला मरीज, आपने पहले ही बोला ना, शांत क्या अच्छा होके जाए, ये हमारे, तो क्या हुआ, आपका भी रिजल्ट क्या है? टू बी गुड का ही है ना, टू डू गुड गेट गुड. हमारी हॉस्पिटल में वेल ट्रीटमेंट करेंगे, मगर गुरुदेव अच्छा होके निकल जाए हम चाहते हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मरीज भी गुड लेकर जाना चाहिए. तो आप बोलो, हमारे जीवन का गोल भी वो ही है, नॉट ओनली टू गेट गुड, नॉट ओनली टू डू गुड, बट चलो आगे. योगेश भाई जवाब नहीं मिला. रात को अकेले बैठा हूं तब भी मैं खुद को लेकर के सेटिस्फेक्शन है. भगवान आपकी अदालत में जब भी पेश होऊंगा, कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा होके आपके पास आ रहा हूं. चलो आगे. ये नंबर 3. नंबर 1 था लिव एग्जाम्पल, नंबर 2 था लिव एक्सपीरियंस, नंबर 3 लिव इमोशंस. बुद्धि नहीं, हृदय.
हर जगह बुद्धि चलती होगी कई क्षेत्र में, मगर ऐसा क्षेत्र होगी जहां इमोशंस टॉप पे चलता है। लॉजिक क्या बोलता है मालूम नहीं, इमोशंस लॉजिक को कोई इमोशंस को लॉजिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। पद्म सुंदर भी आए, साध्वी अनंत कीर्तिश्री भी आए। जो ट्रीटमेंट मिली वो तो अपने आप में अच्छी थी ही, मगर जो प्यार मिला, जो इमोशंस को लेकर के सबको ही अनुभव होगा, मगर मैं तो इनके सामने हूं। साध्वी को भी मिला भी, इनके लिए जो आपको जितना साधुवाद दो इतना कम है। और मैं बताऊं, मरीज दवाई से जितना जल्दी स्वस्थ होता है उससे ज़्यादा इमोशन से स्वस्थ हो जाता है। एक डॉक्टर के मुंह से, एक नर्स से मुंह से उनको जब इमोशंस की बात सुनाई पड़ती है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम है ना आपके साथ, दैट्स ऑल, वो निकल जाएगा बाहर। दो शब्द। और मैं आपको एक कहना चाहता हूं, इम्प्लीमेंट होता ही होगा, मगर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, हर जगह जो भी तुम दो उसमें इमोशंस ऐड करते ही चलो। आपको मैं पूछना चाहूँ, सच बोलो, इमोशंस की पूंजी हमारे पास कितनी? हमारे पास इमोशंस की पूंजी कितनी है, उसको अप्लाई करने का मन कितना? छोटा सा प्रश्न बीच में पूछ लूं। रिक्शा में जाते हो, रिक्शा को मीटर में पैसा दे देते हो, थैंक्स गिविंग करते हो क्या? इमोशंस के दो शब्द योगेश में बोलते हो, ड्राइवर को पैसा चाहिए, आपने पैसा दे दिया और रिक्शा आगे निकल गई, आप उनको प्रेम के दो चार शब्द बोलते हो पैसा देने के बाद? ड्राइवर को नहीं, डॉक्टर को बोलते हो। ड्राइवर को नहीं, डॉक्टर को बोलते हो। ड्राइवर को क्यों नहीं बोलते हो? होटल में जाते हो तो टिप्स देते हो, सच बोलो क्यों देते हो? क्या हुआ? सर्विस के लिए तो उनको सैलरी मिलती है, सर्विस के लिए उनका बहुत सैलरी देता है ना, तो तुम कौन से अच्छी सर्विस दे देगा, तो उनकी जिम्मेदारी है सर्विस। तो मैं पूछूं, सच बोलो, होटल वाला अच्छी सर्विस देता है, तुम टिप्स देते हो, तो रिक्शा ड्राइवर ने अच्छी ड्राइविंग नहीं की? यदि वो तुमको खड्डे में डाल सकता था, तुम्हें फ्रैक्चर भी कर सकता था, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाता, एकदम अच्छी ड्राइविंग करके वो रिक्शा ड्राइवर अपनी जगह पे तुम्हें ले गया। आपको नहीं लगता गुड सर्विस को लेकर के उनको पैसा ज़्यादा मत दो, दो शब्द तो अच्छा नहीं बोल सकते हो क्या? योगेश भाई शू मान दो? नहीं, आपके पास कोई लॉजिक है तो मैं जाना है, वाई नॉट? કેમ જવાબ આપો? શું કહ્યું? ઓકે, પણ તમને બે શબ્દ સારા બોલવામાં તકલીફ શું છે એમ કહું છું? હા, એ તો હું કહેવા આવ્યો છું નહીં। एक 2 ही मिनट में एग्जाम्पल दे दूँ। अहमदाबाद की 3000 लड़के की शिविर के बीच में मैंने एक बात रखी। यहाँ भले तुमने लॉजिक से नहीं, तुमने जो बोला ना, ऐसे लड़के ने बोला महाराज मैं नया क्या करता है, पैसा लेकर के हमको ले जाता है, तो बोला ठीक है, मगर पैसे अपनी जगह पे, थोड़ा इमोशंस, थोड़ा एक दो शब्द बोलो, दो अच्छा ड्राइविंग किया तूने, धन्यवाद, बस इतना ही, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। और एक लड़के ने, मेरे कहने से कई लड़के ने नियम लिए, रविवार की शिविर मंगलवार को लड़का मिलने के लिए हमारा साहब कमाल हो गया। पालड़ी से हमारा से बापू नगर गए, 27 रुपये का चार्ज होता मीटर से, 27 रुपये हमारा साहब देने के बाद रिक्शा ड्राइवर जा रहा था, मैंने उसको इतना कहा दोस्त अच्छी ड्राइविंग करके मेरे पूरे परिवार को तूने बचा लिया है। 8 लोगों का परिवार, पैसा कमाने वाला मैं अकेला, यदि तेरी ड्राइविंग में गलती होती और मेरा कुछ हो जाता, मेरा परिवार खलास हो जाता। सिर्फ इतना ही शब्द। और रिक्शा वाला खड़ा रह गया, आँख में आंसू। तो मतलब क्या होगा,
35 साल से मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा तारीफ किसी ने नहीं की। पहली बार आपके मुंह से देखा मेरे अच्छे ड्राइविंग से किसी का परिवार बच सकता है। धन्यवाद, आपके 2 शब्द ने मेरा हौसला बना दिया और आपके सामने मैं आज कबूलात करना चाहता हूँ, कमिटमेंट करना चाहता हूँ। मेरी अच्छी ड्राइविंग से यदि किसी का परिवार बच सकता है, पहली बार मुझे पता चला। सप्ताह में 2 दिन मैं पी कर के चलाता था, आज आपको सुन के जिंदगी भर के लिए पीने का छोड़ देता हूं। मैं 2 शब्द आपके अच्छे में भी पॉसिबल किसी जीवन को परिवर्तन कर सकता है। तो इमोशंस, नॉट ओनली एग्जाम्पल, नॉट एक्सपीरियंस, बट इमोशंस। दूध में शक्कर आ जाती है तो क्या होता है, दूध पौष्टिक तो है, स्वादिष्ट बन जाता है। फरी बात, दूध पौष्टिक तो है पर साकर આવવાથી दूध स्वादिष्ट बनी જાય છે। તમે કોઈની સાથે જ્યારે લાગણીની વાત કરો એનું જીવન સ્વાદિષ્ટ બની જાય છે। નંબર 3, નોટ ઓનલી એક્ઝામ્પલ, નોટ એક્સપિરિયન્સ, બટ ઇમોશન્સ। નંબર 4, ઇમ્યુનિટીની વાત આવે ને એમાં ઇમોશન્સની વાત। અને નંબર 5, ક્યારેક તમે સુગરને નિયંત્રણમાં રાખવાની વાત કરો, સ્ટ્રેસને નિયંત્રણમાં રાખો। હે, આમ તમને આમ પૂછી લઉં, મને ખબર નથી, આપ સ્ટ્રેસ में हो? हाँ बोलो ना बोलो, किसका स्ट्रेस? मैं आपको एक छोटा, मुझे मालूम नहीं फिर भी आपको बताऊं, बरसों पहले इसी बम्बई में, शायद आपने नाम सुना मांडके का, बराबर है ना? बहुत छोटी उम्र में बड़ी एम्बिशंस लेकर के वो डॉक्टर बैठा था। उनके मन में एक ऐसा ख्याल था कि पूरे बम्बई में करीबन 400 करोड़ की हॉस्पिटल बना लूँ, जो मैंने सुना एग्जाम्पल। और उसको लेकर के इतने स्ट्रेस में था वो, इतने स्ट्रेस में। एक ऑपरेशन सुबह का यदि बम्बई किया तो शाम को दुबई, ये चलता था इनका, आपाधापी भागम भाग। अच्छा था, हाथ में यश था, मगर एक स्ट्रेस रुकने का नाम नहीं। और ये जो मैनेजमेंट करने थी खुद की लाइफ की, I would like to ask you, what about your personal life? What about your private life? What about your family life? What about your social life? आपके स्ट्रेस का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर आई एम नॉट इन स्ट्रेस। मैंने मेरे जीवन की व्यवस्था बना दी। फर्स्ट पर्सनल लाइफ, सेकंड प्राइवेट लाइफ, थर्ड माय फैमिली लाइफ, फोर्थ माय सोशल लाइफ, देन बिजनेस लाइफ। शायद बोलो आपके जीवन की व्यवस्था में ये रूट है क्या? I meet twice in a day to my all family members, each and all members twice in a day। चाहे दुनिया भर का मुझे काम है, मगर मेरे परिवार को मैं 2 टाइम मिलता हूं, इसी में फैमिली। काम का इतना स्ट्रेस, आपके बेटे को नहीं मिल सकते हो, आपके खुद के साथ बात नहीं कर सकते हो, ये स्ट्रेस कहां ले जाएगा? ऑन द एज ऑफ एवरेज 36 और या तो 40, ये मान के डॉक्टर की बात में डॉक्टर को लेके करता हूं। शायद आप बोलेगी उनका गोल तो अच्छा था ना, मगर चाहे भी कितना अच्छा गोल हो, मैनेज तो अपने को करना ही चाहिए। वो भागते रहता था, और एक दिन भागते इसी बॉम्बे की किसी हॉस्पिटल में मरीज का ऑपरेशन था, गाड़ी ड्राइव करता था। चालू गाड़ी ड्राइव करते करते उन्होंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, सब कुछ तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ। और जवाब मिला, सब कुछ तैयार है। और तब उसने कहा, और किसी के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। हॉस्पिटल की प्रीमाइसेस में दाखिल हुआ, स्टीयरिंग व्हील पे अटैक आ गया और खलास हो गया। ये क्या स्ट्रेस का, ये क्या करना है? यदि आपकी जिंदगी को ही खत्म कर दे वो स्ट्रेस, और आपके जाने के बाद पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, इतना स्ट्रेस लेकर के आपको क्या करना है? It is common with doctor's life. We are very punctual with patient, but then we are not punctual with us.
सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम। અને પાછું તમે દરેક મરીજને તો તમે હાથ સલાહ આપો, બરાબર હોઈ છે જેવો બરાબર, તું તો હોઈ જા શાંતિથી. हर मरीज को डिस्चार्ज करने के पहले तुम सब बोल देते हैं स्ट्रेस मत लेना, बराबर खाते रहना, समय पे खाना, भूख लगे तो खा लेना, शांति से सो जाना. तो आपके लिए कौन कहेगा? मैं ही कहूँगा. माने जाणવું છે શેનો આટલો બધો છે. અને એક નાનકડી વાત કરું, वन कोटेशन स्ट्रेस का और स्ट्रेस से मुक्त होने का. एक कोटेशन आपने सुना नहीं होगा तो मैं सुना देता हूँ, पकड़ो मत जाने दो. ये हिंदी कोटेशन है. यदि पकड़ो, वहाँ तुमने कोमा रख दिया, कोमा, तो जिंदगी भर स्ट्रेस रहेगा. पकड़ो मत जाने दो, ये जिंदगी भर तक आपको स्ट्रेस रहेगा. और पकड़ो मत, वहाँ कोमा रख दो, आप स्ट्रेस फ्री. पकड़ो मत जाने दो. सच बोलो, आपको क्या जमेगा? पकड़ो मत जाने दो और पकड़ो मत जाने दो. हाँ, मैं क्या ना बोलता हूँ, यहाँ कोई गलत है ही नहीं, दोनों बराबर है. मगर आपको क्या जमेगा? मैं कहाँ ना बोलता हूँ, दोनों बराबर ही है. मगर यदि आप स्ट्रेस मुक्त होना मेरे से जानना चाहते हो, एक ही राज, पकड़ो मत जाने दो. वाई वी आर हैप्पी. आपको तो 2-3 मरीज मिलते होंगे, लाखों की संख्या में प्रवचन करके आया. कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब इतना प्रवचन किया, आउटपुट आपको क्या मिला? मैं सोचता ही नहीं. पकड़ो मत जाने दो, बस. मुझे मेरा बोलने का काम था, किसको लेना नहीं लेना उनकी मर्जी की बात थी. मैं टेंशन में नहीं लेता हूँ, उनकी वो जाने. मेरा काम था, भगवान महावीर ने मुझे जो दिया था मैंने आपके सामने डिलीवरी कर दी. लेना नहीं लेना आपकी मर्जी की बात, मैं टेंशन फ्री हूँ. आपके पास ये ताकत है कि नहीं? नो स्ट्रेस एट ऑल. काम 24 घंटे में भले 20 घंटे करते हो. मैं काम की ना नहीं बोलता संजय भाई, आपकी भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मरीज को अच्छा करना आपका कर्तव्य भी है, मगर विदाउट स्ट्रेस भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो. सच बोलो, स्ट्रेस घना रोगों लावे तो છે ને, ખબર છે ને? आपको स्ट्रेस है तो किसका है? काम का ही कि दूसरा भी है? मैं स्ट्रेस मुक्त कैसे होना, उनका बहुत बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, मैं देना चाहूँगा. मुझे मालूम है समय हो चुका है, मगर 2 मिनट. भावनगर में एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, चेहरे पे मुस्कान थी. मैंने बोला, ये कहाँ से आया? गुरुदेव होटल में पार्टी दे के आया. मैं बोला, क्यों? बोर्ड का रिजल्ट था. सच बोलो संजय भाई, कोई लड़का इतनी बात करे, बोर्ड का रिजल्ट और पार्टी. हमारे आंखों के सामने जो कल्पना दी, वो कल्पना क्या दी है? कितना परसेंटेज? योगेश भाई कितना? हाँ, टॉप. हाँ, टॉप. पार्टी दे के आया, बोर्ड की एग्ज़ाम का रिजल्ट था. तो मेरे मन में भी वही आया. तब मैंने उनको पूछा, कितना परसेंटेज? 37. मैं रियली हैरान. मैं बोला, यार 37 में तू पार्टी दे के आया? हाँ. मैंने बोला, क्यों? गुरुदेव देखो, 94 वाला जिस क्लास में जाएगा उसी क्लास में मैं जाऊंगा, मजे में हूँ. और 94 लाने के लिए उसको स्ट्रेस में कितनी रात बिगाड़ दी, वेट कम हो गया, आई एम हैप्पी. तो गुरुदेव 37 में भी वही क्लास में यदि जा सकता हूँ, स्ट्रेस रखने की जरूरत क्या? और एक बात, दिल्ली में मैं था तब एक लड़का 91.5% में सुसाइड नॉट रख के चला गया. मेरा एक्सपेक्टेशन 93 का था, मैं मर रहा हूँ. एक 91.5 में सुसाइड कर सकता है, एक 37 में पार्टी दे सकता है. तुम समझते हो डिफरेंस क्या है? उसने मन पे लिया ही नहीं. ओके, वाई यू आर इन स्ट्रेस? आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करते हो. और मैं फिर से कहूँ, आपका स्वास्थ्य हजारों लोगों के लिए आशीर्वाद रूप बन सकता है. तब आपको ये जोखम उठाने का काम नहीं करना चाहिए. लिव एग्जाम्पल
लिव एक्सपीरियंस, लिव इमोशंस, लिव एफर्ट. What means effort? नहीं. और 5वें नंबर की बात, लिव एंडिंग. माने मेरे जीवन की एक्सपायर डेट कभी भी आ सकती है. डर से नहीं, डर की बात नहीं करना चाहता, मगर एट एनी टाइम T20 की मैच कभी भी ख़त्म हो सकती है. तो मेरा जीवन भी कभी भी, एक बार ये आंखों के सामने लिव एंडिंग को लेके मैं चलूँगा, बहुत कुछ मेरे जीवन में गलत करने से अपने आप को बचा पाऊँगा. 4 महीना तक रहा, आकस्मिक पद्मसुंदर का स्वास्थ्य बिगड़ा. डाणू में था तब मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ा था. कोरोना से मैं भी ग्रस्त हो चुका था. योगेश भाई, संजय भाई से बात होती रहती थी. एक ऐसा भी मन बना लिया था कि दाणू से लेकर आना है तो फोर्टिस में ही दाखिल होना, मगर एक ऐसी व्यवस्था मेरे आने से पहले बन गई. मैं ब्रिज कैंडी में गया, मगर यहाँ जो गुडविल एक्सपीरियंस एग्जाम्पल जो एक बनी है, शायद सुना है ऐसा कि यहाँ आने वाले मरीज को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी मिल रही है और इनका आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है. करीबन थोड़े साल के पहले कालिदास में मेरा प्रवचन था डॉक्टरों के बीच में. मैंने एक छोटी सी बात रखी थी. आज वो कोई नियम देने के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैंने एक छोटी सी बात रखी थी कि अंडर 35 ईयर्स का कोई भी मरीज, अंडर 35 ईयर्स का कोई भी मरीज यदि आपके पास आए और आप इनको यदि न बचा पाओ, कम से कम इनका चार्ज छोड़ देना. 35 साल का मरीज जब शांत होता है, उसके परिवार में क्या हो सकता है? यदि पति गया तो पत्नी, इनका बेटा, उन लोगों की एक फ्यूचर की चिंता क्या होगा. हमारे परिवार का लीडर चला गया, शायद एक बहन चली जाती है, बेटा बिना माँ का हो जाता है. मैंने मेरी 5 साल की उम्र में माँ गंवाई. बिना माँ अपने बेटे को बड़ा होना कितना डिफ़िकल्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर वो टाइम मैंने ये बात रखी थी कि अंडर 35 ईयर्स यदि मरीज को आप न बचा पाए तो चला गया. और यदि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम 100% गुरुदेव इनकी फ़ी छोड़ सकते हैं. इमोशंस आज प्रसंग बन गया. यहाँ प्रवचन के लिए आना बहुत टफ था, मगर ऐसे ही घाटकोपर जाने के लिए शाम को भांडुप जा रहा हूँ. डॉक्टरों के बीच में प्रवचन मैंने बहुत किया, मगर हॉस्पिटल में प्रवचन पहली बार. क्रेडिट गो टू फोर्टिस. हाँ, लगता है कि यहाँ प्रवचन की. शेयर बाज़ार में गया तो मैंने कहा था मुझे यहाँ क्यों बुलाया. शेयर बाज़ार में तो मेरा काम नहीं था, मगर लगता है कि मेरा काम हर जगह है. हाँ, और तो मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मगर कभी कभी ये होता है, पीस मिल जाती है, थोड़ा समाधान मिल जाता है, कॉम्प्रोमाइज नेचर बन जाता है. तो आज प्रवचन को विराम देने के पहले आपके सामने 4 बात सिर्फ नाम रख दूंगा. इनको लेकर के कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस, आपका लव एंड आपका गुड नेचर, 4 के साथ समाधान करके किसी भी क्षेत्र में सफलता लेने के लिए दौड़ना मत. हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, लव ऑफ हार्ट एंड गुड नेचर ऑफ हार्ट, ये 4 यदि आपके पास आ जाए, बहुत कुछ आपके जीवन का एक आपको खुद को आनंद आएगा कि क्या मेरी लाइफ चल रही है. तो आज इतना ही करके प्रवचन को मैं विराम देता हूँ. हाँ, बहुत सारे. Thank you so much, Gurudev. आपका खूब खूब आभार. गुरुदेव मैम.
लाओ ने લાવો ફૂલને તો ફૂલની પાપડી રૂપે સરસ્વતી રૂપ ડાયરી અને પેન અને આનંદ ગુરુદેવ, અમે આજે આપના આશીર્વાદ સાથે અમારી ફાર્મસી શરૂ કરવા માંગીએ છીએ હોસ્પિટલની અંદર કમ્યુનિટી અને અમારા પેશન્ટને લાભ મળે એટલા માટે. તો આપને અમારી અનુમોદના રિક્વેસ્ટ છે કે આપ નીચે પધારો અને અમને માંગણી કરો. આવો. પ્લીઝ. સૌર મંગલ મંગલમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જય નમઃ.